Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope you will be fine and safe. I am your biology teacher and welcome to my channel Biological Myths. In our today video, we learn and study about enzymes. What is enzyme and its introduction? So let's start our video. You know that in our body and all living organisms like animals possess metabolic reaction inside the body or biochemical process. Enzymes have important role. If we talk about any reaction for speed up of the reaction need a catalyst. In living organism body all chemical reaction mostly perform with the help of enzyme because enzymes speed up chemical reaction and used as a catalyst. I hope you understand the introduction of enzyme. So what is catalyst? It speed up the reaction but not used in reaction itself. After completion the reaction it release. सो कैटलिस्ट क्या है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने में हेल्प करता है, तेज़ करता है केमिकल रिएक्शन को, लेकिन वो ख़ुद जो है उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होता। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो ख़ुद को वहाँ से रिमूव कर देता है। कैटलिस्ट की एग्जांपल यहाँ हमारे पास क्या है? एंजाइम। एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट used in biochemical reaction as a catalyst, speed up the reaction and release. These include building muscles, destroying toxins and breaking down food particles during digestion. इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि जैसे मसल की बिल्डअप होता है या टॉक्सिन की ब्रेकअप, ब्रेकिंग डाउन फूड, हम खाना खाते हैं लाइक डाइजेशन, और पार्टिकल्स जो होते हैं फूड पार्टिकल्स उसकी ब्रेक डाउन में हेल्प करता है एंजाइम और रिएक्शन को तेज़ करता है। हम आगे क्या पढ़ेंगे? हम जो है एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हाउ एंजाइम वर्क्स, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम एंजाइम का, कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम स्ट्रक्चर क्या है? यू कैन सी इन डायग्राम। ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन क्या है? बेसिक यूनिट एमाइनो एसिड है प्रोटीन का। इट इज़ द एमाइनो एसिड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन and it is globular protein like globe shape, round shape structure. Enzyme are also contain amino acid. How enzyme works? For example, enzyme combine with substrate, it make product. Enzyme release out from reaction. सबस्ट्रेट की एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे फूड। फूड इज़ अ सबस्ट्रेट। अ माउथ कंटेन एंजाइम। फूड अटैच विद द एक्टिव साइड of enzyme and digest food with the help of an enzyme. What is cofactors? Some enzyme need help of other substance. If they not get proper help, that enzyme not perform proper function. कुछ जो एंजाइम होते हैं उनको जो है वो दूसरे सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए? फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन। ये सब्सटेंस क्या करते हैं? इनका काम ये होता है कि एंजाइम की हेल्प करते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शन। अगर इनको ये सब्सटेंस ना मिले, अगर ये सब्सटेंस ना मिले एंजाइम को, तो वो एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं कर पाते।
इन सब्सटेंस की एग्जांपल हमारे पास हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स वो चीज़ें हैं जो एंजाइम की हेल्प करते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शन, फॉर प्रॉपर देयर वर्क। Cofactors are helper molecules. They are non-protein in nature. Cofactors are chemical compound, and we divided cofactor into two categories. The first is inorganic, and for example magnesium and calcium. It act as activator. It activate the chemical reaction. And the second example is organic complex molecules. What is organic complex molecules? For example, coenzyme. Coenzyme, the example of coenzyme is NAD plus. NAD plus. What is NAD plus? Nicotine, amide, adenine, dinucleotide. इनका फंक्शन क्या होता है? What is the main function of cofactor? Act as a bridge between enzyme and its substrate. एंड मैग्नीशियम आयंस क्या करते हैं? मैग्नीशियम आयंस contribute to the structural development of DNA RNA. For example, I already said some enzyme need substance for their proper function, and we have for example हम ले लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. In glucose 6 phosphate, an enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenase involved with the help of magnesium ion act as cofactor. It activate the reaction for further proceed. So let's talk about mechanism of an enzyme. The first is lock and key model of enzyme, and the second is induced fit model of enzyme. We have two mechanism of enzyme, lock and key model of enzyme, and the second is induced fit model of enzyme. Here is the structure of lock and key model of enzyme, and it is the example of lock and key model of enzyme. सो वी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम क्या है. इन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम वर्क एट लॉक एंड की प्रिंसिपल. एंजाइम जो है वो लॉक एंड की प्रिंसिपल पे काम करता है. फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक ख़ास किस्म की चाबी होती है. इसी तरह एक ख़ास एंजाइम के लिए उसका ख़ास सबस्ट्रेट होता है. ये सबस्ट्रेट ख़ास किस्म का क्यों होता है? ये लॉक जो है उसकी एक ख़ास शेप है. आप डायग्राम में देख सकते हैं लॉक जो है उसकी एक ख़ास शेप है जिसके अंदर यही ख़ास शेप वाली की ही जाएगी. इसी तरह से जो एंजाइम है उनकी जो एक्टिव साइड होती है उसकी भी ख़ास शेप होती है, और वो जो ख़ास शेप वाले सबस्ट्रेट होते हैं वही उसके अंदर जाते हैं और वही उसके अंदर फिट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अमाइलेज एंजाइम. अमाइलेज एंजाइम जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं. इन आवर माउथ व्हेन वी ईट फूड इट्स एंजाइम डाइजेस्ट इट. जब हम खाना खाते हैं तो ये अमाइलेज एंजाइम ही जो है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं. सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं पेप्सिन की. पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम. स्टमक के एंजाइम की शेप चेंज होगी, डिफरेंट होगी अमाइलेज एंजाइम से. लेकिन ये जो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं सिर्फ उनके लिए शेप इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं एंजाइम में. पॉल फील्डर एंड डी वुड्स, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का के बारे में बताया था कि ये भी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं. सो व्हाट इज़ चार्जेस?
जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं एंजाइम की। एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं और जो सबस्ट्रेट होता है उस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। सो यू नो दैट ऑपोजिट चार्ज कार कम्प्लीमेंट्री चार्ज एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा एंजाइम के एक्टिव साइड की तरफ, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और एंजाइम जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से जो है वो सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो फिट होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम से कैसे डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है। पहला वाला मॉडल में हमने देखा था कि उनकी शेप स्पेसिफिक होती है, लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो होता है कि जो एंजाइम के एक्टिव साइट है वो फिक्स नहीं होती, शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइड में फिट होता है तो ये अपनी शेप को चेंज करता है, चेंज लेकर आता है, इंड्यूस्ड करता है, चेंज इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक ये करता है, चेंज इंड्यूस्ड होता है इस एंजाइम की एक्टिव साइट में। यू कैन सी इन डायग्राम, पहले ये वाइडर है, खुला है ये एक्टिव साइड, बाद में सबस्ट्रेट फिट हुआ तो ये तंग हो गया है, बंद हो गया है, चेंज हो गया है शेप। यू कैन सी क्लियरली एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो वाइडर है, खुला है, जबकि सबस्ट्रेट की शेप जो है वो छोटा शेप का है सबस्ट्रेट, और एंजाइम के जो एक्टिव साइड है वो वाइडर है। लेकिन बाद में जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइड के साथ अटैच हुआ है तो ये भी बंद हो गया है, चेंज हो गया है शेप एक्टिव साइड की। एंजाइम की एक्टिविटी शुरू हो गई है, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी तेज़ हो गई है, एंजाइम इंक्रीज़ हो रहा है एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम पे अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम, व्हाट इज़ एंजाइम, यू नो दैट वी ऑलरेडी स्टडी। एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी अमल हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ा रहे होते हैं। फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट इज़ फैक्टर्स। फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है। सो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम पे, सो लेट्स जानने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या आता है, वो ऐसे होता है कि जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या बढ़ा रहे होते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही होती है। लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर हमने देखा है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, वो है 40 सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कौन सी एंजाइम है जो 40 सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। इन ह्यूमन डिफरेंट एंजाइम वर्क, ह्यूमन के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं और उनके लिए मुख्तलिफ एंजाइम चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन, हम खाना खा लेते हैं तो वो डिफरेंट एंजाइम की वजह से हज़म होते हैं।
उनकी रेंज क्या होती है 37 सेंटीग्रेड टू 40 सेंटीग्रेड। ये इंजाइम 37 सेंटीग्रेड टू 40 सेंटीग्रेड पे वर्क करते हैं। जब टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो एक्टिविटी इंजाइम की ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाती है। क्यों कम होती है, कम क्यों होती है? जब टेम्परेचर हम 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जितने भी इंजाइम की मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। ज़्यादा मूवमेंट होगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके हिलने की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और वाइब्रेशन की वजह से उनमें वाइब्रेशन एनर्जी आ जाएगी और दोनों काइनेटिक एंड वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से उनमें क्या प्रोड्यूस होगी, उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है एंजाइम में, जो ख़ास शेप होती है एंजाइम की जिसकी वजह से वो एक ख़ास मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ख़राब हो जाती है। जब शेप ख़राब होती है तो हम क्या कहते हैं कि एंजाइम डीनेचर हो गया है। सेकेंड जो फैक्टर्स है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो कैसे अफेक्ट करता है? जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उस जार के अंदर जिसमें प्रोसेस हो रहा होता है उसमें एंजाइम मौजूद होते हैं या मौजूद हैं। अब उन एंजाइम की जो साइट होती है जिसमें सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है वो अटैच होते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनती रहती है। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड saturation point and we known as X पॉइंट और saturation पॉइंट, जिसके पॉइंट पर जितने भी एंजाइम थे उनकी सारी की सारी जो साइड है जिस पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है वो फिल हो गए हैं। कोई एंजाइम जो है वो नहीं रह गया, बाकी कोई एंजाइम मौजूद नहीं होगी। इसलिए इसके लिए लाइन हमें स्ट्रेट नज़र आती है और हम क्या कहते हैं इसको सेचुरेशन पॉइंट। एंजाइम जो है वो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एंजाइम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट साइट नहीं ढूंढते, साइट नहीं मिलती उनको जिस पे आके उन्होंने वो अटैच हो जाए, तो उसको जो है हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। एक ख़ास पॉइंट तक एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो है वो अमल रुक जाता है प्रोडक्ट बनने का। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच। पीएच कैसे जो है वो अफेक्ट करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन पे। व्हाट इज़ पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितने भी एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं वो ख़ास पीएच पे काम करते हैं। ह्यूमन के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन इन स्टमक, वो किस पीएच पे काम करता है? रेंज 1.4 रेंज पे पीएच पे। ट्रिप्सिन इन इंटेस्टाइन, ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, वो 7.7 पीएच पे। मैक्सिमम ऑप्टिमम पीएच 7.7 पे वर्क करता है। पीएच बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी कम क्यों होती है? व्हाट इज़ चार्ज? यू नो दैट जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एंजाइम के ऊपर चार्जेस होते हैं और सबस्ट्रेट के ऊपर भी चार्जेस मौजूद होते हैं। जब पीएच बढ़ाते हैं तो चार्ज की जो चार्ज जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। चार्जेस सबस्ट्रेट को पार्टनर नहीं मिलता बॉन्ड बनाने के लिए और इस वजह से जो है वो एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।